نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم۔ بلرام پور کے اس عظیم اور تاریخی سرزمین اور بہار جیسے عظیم علاقے، آج میں یہاں کی پوری انسانیت کا درد رکھنے والی جنتا کو پیغام پہنچانے کے لیے اس عظیم شہر سے آپ کے درمیان آیا ہوں، جس شہر سے کوئی نہ آشنا نہیں ہے، جس شہر کا نام، جس شہر کے عظیم سپوت بہادر جرنیل نڈر وہ ٹیپو سلطان شہید نور اللہ مرقدہ، جن کے ہوتے ہوئے کبھی گوری چمڑی کے انگریز کو نہ یہ جرت تھی نہ یہ ہمت تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ آج سے بھارت دیش ہمارا ہے۔ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جام شہادت کو نوش کیا، اس کے بعد انگریز کو یہ دم آیا کہ وہ کہنے لگا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس سرزمین سے اٹھ کر، کرناٹکا سے اٹھ کر میں آپ کے سامنے بہار کے لوگوں ایک پیغام پہنچانے کے آیا ہوں۔ بہار پورے ملک بھارت میں ایک ایسا طاقتور اسٹیٹ اللہ نے دیا ہے، تم چاہو تو دلی تک لٹیروں کو پہنچا سکتے ہو، تم چاہو تو دلی تک ایوانوں تک اچھوں کو پہنچا سکتے ہو، تم چاہو تو پورے ملک کو IAS نے دیا ہے، IPS نے دیا ہے، تم نے یہاں سے اچھے سوشل ایکٹیویٹیز تم نے دیے ہیں، تم نے بہار سے اچھے جرنلسٹ تم نے دیے ہیں۔ اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بہار میں نیتا بھی نیک ہوگا، بہار میں نیتا بھی اچھا ہوگا، تو وہ دن دور نہیں کہ پھر پورا ملک میں امن و انصاف، عدل، اچھا نظام آ جائے۔ یہ تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، یہ تمہیں فیصلے لینے پڑیں گے۔ اگر تم نے اس کی کوشش نہ کی، اگر تم نے ابھی اگر مگر کے چکر میں، بہکانے والوں کے بہکاؤ میں، دلالوں کی دلالی میں، جھوٹوں کے جھوٹ میں، مکاروں کی مکاری میں تم نے آ کر اپنے عظیم ووٹ کی قیمت اور ووٹ کی نعمت سے تم نے محرومی اختیار کی، تم نے تمہارا قیمتی ووٹ، جو ووٹ حق ہے، جو ووٹ سچی گواہی اور شہادت ہے، تم نے کسی لٹیرے کو، کسی گنڈے کو، کسی جاہل بدکار اور بدگماش کو تم نے یہ ووٹ دے دیا، تو تمہارے اوپر کبھی کوئی نیک ٹیپو سلطان کا وارث، خالد سیف اللہ کا وارث اور سچے اکابر کا وارث کبھی تم پر مسلط نہیں ہوتا۔ کس منہ سے اللہ سے دعا کرتے ہو، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پہ ہرگز اس کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ 15 سال سے تمہاری جنتا کو کسی اس نے رحم نہ کیا، 15 سال سے تمہارے بچوں پر جس نے غربت کے توخ پہنا ہے، 15 سال سے بلرام پور کی جنتا کے ووٹ لے کر اپنی پراپرٹیوں کو جس نے بنگال میں منتقل کر دیا، کس منہ سے تم دعا کرتے اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا؟ اللہ بھی تو آسمانوں سے کہتا ہوگا ووٹ کا حق تم نے اس لٹیرے کو دیا، دعا تو یہ کرتے ہو کہ اللہ ایسے کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ دعا کرو، رسول پاک نے ہمیں کیسی تعلیم دی، سرور دو عالم خاتم النبیین کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، اصحاب رسول کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، اسلامی ممالک کے بادشاہ، امن پسند بادشاہوں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، اس ملک کی تعمیر میں جو ہمارے اسلاف کا کردار تھا اس کو اٹھا کے دیکھیں۔ وہ صرف دعا کر کر منبر پر بیٹھنے والے، دعا کر کر گھروں میں بیٹھنے والے نہیں تھے، وہ دعا کرنے کے وقت مورچہ بھی سنبھالتے تھے۔ ہم سے زیادہ شیخ العلم، ہم سے زیادہ علم میں افضل، ہم سے زیادہ تقوی میں افضل تھے۔ اگر وہ چاہتے تو انگریز کے سامنے نہ کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے دیکھا آنے والی قوم اگر میں نہ کھڑا ہوں، میرا بڑھاپا، جوانی، میرا علم، میرا تقوی سب میں اس پر نچھاور نہ کر دوں، آنے والا وقت ہوگا کہ ہمارے ملک میں ارتداد آئے گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر جو گوری چمڑی کا انگریز یہاں پر مسلط ہے، یہ ہمارے ملک سے اسلام کو ختم کرے گا، یہ انسانیت کو ختم کرے گا۔ تب وہ علماء اپنے مساجد سے، اپنی خانقاہوں سے، اپنے مدارس
तारीख से निकलकर उन्होंने रास्तों को इख्तियार किया, उन्होंने जेलों की सोबतों को बर्दाश्त किया, उन्होंने न जाने कैसे कैसे जजीरों में दम तोड़ा, तब जाके ये मुल्क हमें मिला। मैं आपसे बलरामपुर वालों, बिहार के नौजवानों, बिहार की गयूर जनता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर वक्त आ चुका है। अंग्रेज जिस पॉलिसी पर चलता था, डिवाइड एंड रूल, जनता के दरमियान मजहबी नफरत, खानदानी नफरत, लिसानी नफरत डाल कर राज करो। आज ये अंग्रेज के दल्लाल, अंग्रेज को माफी निकले वाले गोडसे की औलाद, आरएसएस के हरामखोर दल्लाल, उनके जूतों पर पलने वाली सट्टा बीजेपी 8वें स्तर पर खड़ी है। 8वें स्तरों पर ऐसे ऐसे जालिम मुसल्लत हैं, क्या आप समझते हो? जिस अकाबिर ने खून से सेंस कर जिस मुल्क को आजाद किया, क्या वो मुल्क आजाद है? नहीं, नाम का आजाद हो गया। लेकिन आज इस मुल्क के 4 जो आजादी के पिलर हैं, इन सब पर उन्हीं दल्लालों का कब्जा है। सोशल जस्टिस देख लीजिए, उसमें भी उनका वकील बैठा हुआ है, उनका लॉयर जस्टिस बैठा हुआ है। ऐवानों में देख ले, सब दल्लाल बैठे हुए हैं। फिर पार्लियामेंट से लेकर ऐवान तक, ऐवान से लेकर एस्टेब्लिशमेंट तक सब जगह उन्हीं का बसेरा है। ऐसे वक्त में ओ अकाबिर के नाम लेने वालों, अल्लाह के बुजुर्गों का नाम लेने वालों, इंसाफ को चाहने वालों, जिस तरह हमारे अकाबिर ने खौफ की चादर को निकाल के फेंका, आपके भी जिम्मे जरूरी है कि हर गुंडों की गुंडाई से निकलकर, लुटेरों के लूटने से निकलकर, चोरों की चोरी से, उचक्कों की उचक्की से निकलकर आपको एक इंसाफ पसंद, एक अच्छा मुल्क जिसमें बराबरी हो, जिसमें इंसाफ हो, बच्चों के लिए अच्छा तालीम का निजाम हो, बड़ों की इज्जत हो, मस्जिद की भी हिफाजत हो, मंदिर की भी हिफाजत हो, जिसमें दलित बच्चियों की भी हिफाजत हो। फिर से हम मनीषा वाल्मीकि को देखना नहीं चाहते, हम अखलाक को देखना नहीं चाहते, हम जुनैद को देखना नहीं चाहते। अगर इस तरह का मुल्क बनाना है तो कसम खुदा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर बनाकर आपसे मैं कहना चाहता हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपी से बेहतर कोई पार्टी हो नहीं सकती। वो कैसे? मैं अगर दलाइल देता जाऊं, दलाइल के अंबार लग सकते हैं। मैं सदियों से, कई सालों से मैं इनको देखता आ रहा हूं, इनके साथ शाना बशाना चलता आ रहा हूं, इसके पैगाम को चप्पे चप्पे में ले जाने की कोशिश करता हूं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। क्योंकि हमारी 70 साल से आजाद भारत से पहले मुसलमान, दलित सब आजाद था। आजाद भारत के बाद हमारे ऊपर कैसे अत्याचार किए। अब भी तुम समझते हो कि हमारे ऊपर जो गठबंधन में पार्टियां हैं वो सेकुलर है? अल्लाह की कसम वो सेकुलर हो नहीं सकती। अगर लालू तेजस्वी सेकुलर होते तो क्यों कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिलाया? क्या कांग्रेस ने भावलपुर का फसाद नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद की शहादत, शिलान्यास, ताले नहीं खुलवाए? क्या कांग्रेस ने इन गुजरात के गुंडों को सत्ता तक नहीं पहुंचाया? कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। जिस तरह कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं, इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी में भी कोई फर्क नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग बहुत एतराजात करते हैं, लोग कहते हैं कि उलमा को क्या जरूरत है सियासत में आने की। मैं पूरे इत्मीनान से आपको पूछना चाहता हूं, आपने आजादी हमने दिलवाई, तख्तेदार को हमने छूमा, फांसी के फंदों पे हम लटक गए, तब जाके तुम्हें आजादी मिली। अब अंग्रेज के दल्लाल, ये गोडसे की औलाद, ये आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, ये सब आप पे राज कर रहे हैं। इनकी औलाद को भगाने के लिए फिर से स्टेज पर उलमा को आना पड़ेगा। अब यहाँ पर जंग तीर और तलवार की नहीं, यहाँ पर जंग वोट की, इलेक्शन की ताकत की होगी। ऐसे जंग में आप जीत जाओगे तो इंशाअल्लाह फिर आप कामयाब होंगे। आपने हमें मिंबर दिए, आपने हमें मुसल्ला दिए, आपने हमें खिताबत की कुर्सियां दी। कोई बता सकता है मिंबर पर दूर दूर तक खड़े हुए लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या बता सकते हैं कभी उलमा ने 3 वक्त की नमाज पढ़ाकर 2 वक्त की नमाज में घपला कर दिया हो? क्या कभी उलमा ने जुमा के बजाय उलमा आलिम के घर की शादी को जुमेरात में जुमा पढ़ाकर जुमा में जुमेरात कर दिया हो? क्या कभी तुमने देखा है जिस वक्त क्या मदारिस तुमने दिए, हमने चंदे की जिल्लत को बर्दाश्त किया, हमने आपके कौम के बच्चों को पढ़ाया और लिखाया और उनको खिलाया पिलाया, उसके बाद आज हम जिस तरह 5 वक्त की इमामत ठीक वक्त पर आपसे करते थे, इसी तरह हम उलमा को एक मरतबा असेंबली की
सीट मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब को देखें, 5 साल तक ये जिस तरह नमाज पढ़ाते रहे, आपकी खिदमत, आपकी सेवा, आपकी पूरे जनता की सेवा करके दिखाएंगे। आपने किसको भेजा? आपने चोरों को भेजा। कोई कभी जेल में जाने के नाम पे वोट मांगता है, कभी कोई अपने भाई को खड़ा करके भीख मांगता है, कभी किसी और नाम से गुंडागर्दी करके। ऐ लोगों, कान खोल के सुन लो, हम टीपू सुल्तान शहीद नव्वरअल्लाह मरकदम की सरजमीन से हैं। हमें अगर जान का खौफ होता, हमें डर का खौफ होता, हम हथकड़ियां, बेड़ियां, तख्तेदार से डरते। अल्लाह की कसम कभी एसडीपी में ना आते। एसडीपी में आने से पहले अपने माओ को सलाम करके आना पड़ता है। एसडीपी का कैडर वही बन सकता है जिसे हथकड़ियां पहनने का शौक हो, जो न जेलों से डरता हो न डंडों से डरता हो। क्योंकि हमें अब अपनी आने वाली नस्लों को हरगिज़ गुलाम बनाना हरगिज़ नहीं चाहते, तब जाकर हम एसडीपी के कैडर बनते हैं। एसडीपीआई और हर पार्टी, मैं थोड़ा सा पार्टियों का मुआवजा कर देता हूँ। मैं बताना भी चाहता हूँ कि मैं जिस पार्टी से आता हूँ, एसडीपीआई, इसका मकाम कितना बुलंद है, ये पार्टी चाहती किसको है, ये पार्टी कौम को क्या देना चाहती है। सबसे पहले बीजेपी का नाम लेना चाहता हूँ। बीजेपी का नाम लेते आप समझ जाएंगे, बीजेपी बलात्कारों की, झूठों की, चोरों की, उचक्कों की पार्टी है। कांग्रेस, ये तो पूरा इन्होंने तो पूरा मुल्क 70 साल से इन्होंने जातिवाद में बांटा, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया, मुस्लिम को सिख से लड़ाया, इन्होंने जातिवाद में सबको लड़ाया, यादवों को राजपूत से लड़ाया। इस तरह लड़ाकर उन्होंने सत्ता हासिल की। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी तो इतनी खतरनाक है, जाके जेएनयू के स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए। आज चाइना में कम्युनिस्टों की ताकत है, आज दूसरे ऐसे ममालिक में जहाँ कम्युनिज्म चलता है वो चलता करते हैं। वहाँ मजहबी लोगों का हाल देख लेना। ये सारी पार्टियां ठगने के लिए आती हैं, यह सारे झूठे मक्कार हैं। एसडीपीआई जिसका नारा है भूख से आजादी, खौफ से आजादी, ये कौम को भूख से आजादी दिलाना चाहती है। जो कौम आज भूखी है, प्यासी है, नंगी है और खौफ से आजादी दिलाना चाहती है, ताकि आने वाली नस्ल बिहार से लेकर दिल्ली तक ट्रेन से टोपी दाढ़ी के साथ सफर कर सके, किसी को डर ना हो। ये पार्टी वो है जो पूरी इंसानियत को बराबरी का हक दिलाती है। हमारे इलाके में आके देखो, कभी सुना कि कर्नाटक में फसाद हुआ हो, केरला में फसाद हुआ हो, तमिलनाडु में फसाद हुआ हो? क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर एसडीपी जैसी बहादुर गयूर टीपू के गुलामों की पार्टी है, जिसकी वजह से वहां आरएसएस के कैडर जो चड्डी पहनते हैं, उनकी चड्डी गीली हो जाती है। वो हिम्मत नहीं कर पाते कि वो कभी हमारे ऊपर हाथ डाले। मैं एक वाकया लतीफा सुनाता हूँ। आप मैसूर के असेंबली, कर्नाटक के असेंबली में जो अमित शाह जो एक दिग्गज नेता है, जो एक दलाल तड़ीपार नेता है, वो नेता अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है मैं जिससे चाहे हाथ मिला लूं, लेकिन मैं एसडीपी से हाथ मिला नहीं सकता। मैंने कहा सुभान खुदा, तेरी कितनी बड़ी कुदरत है कि इस एसडीपी से हाथ मिलाने के लिए मर्दों के हाथों की जरूरत है, हिजड़ों के और औरतों के हाथ की जरूरत है। मैं एक लतीफा सुनाता हूँ। एसडीपीआई, आप समझ रहे होंगे, एसडीपीआई आएगी तो क्या करेगी बात पता चलेगा, पर ताकत तो दिखाओ। अमित शाह को मेरे तरह बाल है, टकला है? अरे बताओ, अमित शाह को मेरे तरह बाल है, टकला है? एक मर्तबा अपने नाई जिसको कहते हैं हज्जाम के पास बाल बनवाने के लिए बैठता है। बार बार अमित शाह को पूछा जाता है, साहब पीएफआई और एसडीपी का क्या हुआ? तो अमित शाह कहता है, हाँ हमने तो झारखंड में बैन कर दिया, केरल में इनके पीछे ईडी को लगाया है, बंगाल में इन्हीं को हमने छोड़ा है, अपने पूरे दलाल पत्रकारों को इनके पीछे लगा दिया है। मोदी की ब्रिगेड, आरएसएस की पूरी दलाल ब्रिगेड इनके पीछे लगी है, सब इनके पीछे लगे। अभी हम खत्म कर देते हैं, अभी इनका सफाया दुनिया से कर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद वो हज्जाम पूछता है, फिर अमित शाह यही कहता है, तीसरी चौथी मर्तबा भी यही पूछता है। तो हज्जाम को हड़बड़ा के अमित शाह कहता है कि यार कितनी मर्तबा तुम उसका नाम लेगा? तो वो अमित शाह बड़ा अजीब जवाब देता है, हज्जाम बड़ा अजीब जवाब देता है। एसडीपीआई के बारे में समझना तो ये वाकई आपके लिए काफी है। हज्जाम कहता है, साहब